Namaskar, I am Ronu Majumdar, the flutist. As you all know, I have played with Rahul Dev Burman, our own Panchamda, for 13 long years. Many memorable songs that are played by me, like Aisa Sama, Na Hota, और खाली हाथ शाम आई है, और लास्ट फिल्म कुछ ना कहो, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. Many many songs. I love the channel on Panchamda, that is Adbhut Pancham Foundation YouTube channel. And I want to just convey my happiness, my best wishes to Adbhut Pancham Foundation YouTube channel and all its friends, and especially my friend Kishore Vittal. Keep growing, keep writing about Panchamda. I have many stories to tell, many more to come. It's never ending when you talk about Panchamda. Small things during the recordings which I have experienced. His love for music, his respect for every musician is uncomparable. Thank you, Adbhut Pancham Foundation. Keep growing. On Panchamda's 85th birth anniversary, I am speaking to Dada Saheb Phalke Academy Award winner, eminent senior film journalist and editor, and the author of R.D. Barmania, Chaitanya Padukone, who was closely associated with Panchamda for 10 years. So, Chaitanya Dada, please share with us what Panchamda means to you. Panchamda actually means the world to me, the music world, sunshine, soulmate, and lifeline. He's my Gurudev, for my film journalism because I started my career doing his very first interview. And what I loved about him right from my childhood, is his rhythm, his experimental music. And I picked up rhythm beats just by listening to his songs. And what I loved was his sense of adding a punch in all his songs, which makes it memorable with repeat value and recall value. And later on, when I got to know him personally, I realized that R.D. Burman not only added punch to his songs, but he also was very humorous and witty and used to come up with punchlines which were very humorous and we used to all laugh. So that was his, like hidden facet, which only if you knew him personally, or you heard him personally, you would know about it. What are the lessons you learned from Panchamda? Uh, Lessons, yeah. Being associated with him for 10 years, there was so much that I learned from him, attending his recordings, being with him in film parties, meeting him at film premieres, at rehearsals, concerts. But what is most important is what I'm going to share with you. One is सबसे पहले ये है कि नम्रता. He was very down to earth. He had a sense of modesty, humility. Never he would kind of show that he was a legend, or he had that genius quality of composing music. Very down to earth. चाहे वो मतलब किसी ड्राइवर से बात कर रहे हो, लिफ्टमैन से बात कर रहे हो, या चाय लाकर देने वाले कैंटीन बॉय से बात कर रहे हो, या अपनी टीम से बात कर रहे हो. वेरी डाउन टू अर्थ, जो कहते हैं ना अपनापन. लाइक I used to always see that he used to work with his musicians. मतलब the musicians never worked for him. उनके साथ वो काम करते थे. He was one of them. तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. दूसरी बात ये है कि he was नेचर वाइज ही वॉज वेरी रेजिलियंट. मतलब जिसको कहते हैं ना कि बाउंसिंग बैक क्वालिटी.
जो उनके गानों में भी इको इफेक्ट जो यूज होता था, उससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि व्हेन a person is going through a bad phase, he is going through depression, उनको setbacks हो रहे, तो अक्सर ये होता है आदमी जल्दी हार मान जाता है, बट पंचम दा was somebody who would bounce back. जैसे हमें 1942 a love story की साउंड से ही पता चलता है, जबकि उनका एक लकलेस बैड फेज चल रहा था, तभी he bounced back. Even previously also, whenever he was going through any kind of ups and downs in his career, he always bounced back, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो. हालांकि उनका एक खास गाना है फिल्म खोटे सिक्के का, विच यूज्ड टू बी वन ऑफ माय इंस्पायरिंग मंत्रास, यू नो, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, ये जो उनका जो कंपोज किया हुआ गाना है, तो वो इट यूज्ड टू बी वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस. तो ये दो चीजें उनसे बहुत मुझे सीखने को मिली. एंड ऑफ कोर्स उनका एक ये था कि बीइंग डिफरेंट, कि कुछ करना हो तो हट के करो, यू नो, डू नॉट फॉलो द क्राउड, डू नॉट बी जंप ऑन द बैंड वैगन, ये लोग वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही करूं. ही ऑलवेज ट्राइड टू बी डिफरेंट. He and the biggest challenge for Pancham Da, which he personally told me, was stepping out of his legendary father Sachin Dev Burman's shadow. तो आमतौर पे देखा जाए तो यू नो जनरली चिल्ड्रन ऑफ लेजेंड्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी, बट आर डी बर्मन प्रूव्ड दैट ही वाज एन एक्सेप्शन, और उन्होंने अपना एक अस्तित्व बनाया, एंड so much to that extent that you know he has today become a cult figure, is a brand name, and you know today everybody worships him for his you know timeless tunes and immortal melodies. There is an interesting anecdote about Kamal Hassan and RD. Would you like to share? Sure. ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं कमल हसन सर को सनम तेरी कसम 1983 के वक्त से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, एंड आई यूज्ड टू नो हिम वेरी वेल. स्टिल आई एम इन टच विद हिम. आई मेट हिम एट 2 of his recent launches, including कल की, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, और हिंदुस्तान. तो आई हैड अ वेरी गुड रैपो विथ हिम. तो कमल हसन ने मुझे उस वक्त कहा था कि एज अ टीनेजर ग्रोइंग अप कॉलेज स्टूडेंट, तो वो उन्होंने वो पंचम दा को प्यार से फॉन्डली हीज टू कॉल आरडी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो क्योंकि पंचम दा पूरे वर्ल्ड म्यूजिक का रिसर्च करते थे, उसको मतलब इनकॉर्पोरेट करते थे अपने म्यूजिक में. तो R&D कमल हसन ने मुझे ये कहा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट. लेकिन मुझे ये लगता है कि R&D का मतलब है रिसर्च एंड डिस्कवरी, कि जितने भी सुनने वाले हैं पंचम दा के, जितने फैंस है, अद्भुत पंचम हो या पंचम मैजिक के हो या यूफोनी के हो, या जितने भी मतलब पंचम के ग्रुप से, पंचम पागल, तो ऑल ऑफ देम you know they are discovering new facets and new depths of Pancham Das songs. हर बार आप सुनो तो कुछ आपको कुछ अलग महसूस होता है. तो उनकी जो म्यूजिक है, इट इज लाइक अ ओशन, मतलब ये और या फिर अंतरिक्ष है, लाइक स्पेस. जितना आप और डीप जाओगे, आपको और कुछ जानने को मिलेगा और सुनने को मतलब आपकी जानकारी और बढ़ जाएगी, और आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा भी है, इसमें ये भी है. तो यू नो इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स सो एक्साइटिंग टू डाइव इनटू पंचम दास यू नो म्यूजिकल ओशन. अच्छा, सनम तेरी कसम के में वो जो गाना है, जाना ओ मेरी जाना, उसमें खासियत ये है कि पंचम दा ने एक कमल हसन को प्लेबैक का वॉइस दिया है, जबकि हो सकता था कि वो किशोर दा को यूज कर सकते थे या बाल सुब्रमण्यम को यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना प्लेबैक वॉइस कमल हसन को यूज किया है. और कमल हसन को वो गाना बहुत ही पसंद था. और हाईलाइट की बात आपको बताऊं कि पंचम दा इस गाने के शूटिंग में खुद पर्सनली गए थे ऑन द सेट्स, जाना ओ मेरी जाना,
और उसमें ये था क्योंकि उस वक्त मैं बरका रॉय जो प्रोड्यूसर है ऑफ सनम तेरी कसम, उनके साथ मैं रेगुलर टच में था। तो उस गाने में उन्होंने क्या किया है कि जब ड्यूरिंग द शूट उसमें एक सीन है जहां पर ऑडियंस में से जो क्राउड सीन है उसमें से एक आर्टिस्ट बेरेट कैप कमल हसन के तरफ वो फेंक देता है। ही throws a cap towards Kamal Hassan because उनके सर पर कैप नहीं है, बाकी कोरस डांसर के ऊपर बेरेट कैप है। तो ओरिजिनली ऐसा था कि इट वाज दैट कैप यूज हैड टू गो फ्लाइंग एंड फॉल ऑन कमल हसन्स हेड, लेकिन पंचम दा ने वहां पर सजेस्ट किया शूट के दौर पे कोरियोग्राफर को कि इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई डोंट यू हैव इट कि दैट द कैप फॉल्स ऑन द स्टेज, एंड जब कमल हसन ट्रम्पेट बजाते हुए आते हैं तो वो कैप जो है अपने आप हवा में उड़ता है एंड इट स्टार्ट्स डांसिंग इन एयर, जैसे इंग्लिश में जो उसको लेविटेट बोलते हैं। तो इट स्टार्ट्स डांसिंग इन द एयर और धीरे 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 ऊपर आके कमल हसन के सर पे वो सेटल हो जाता है। तो ये सजेशन क्रिएटिव जीनियस पंचम दा ने दिया था। तो मतलब सोचिए कि ही वॉज नॉट जस्ट अ कंपोजर, ही वॉज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड अ विजनरी। तो मतलब बहुत सारे उनके ऐसे किस्से हैं जो मेरे पास, मैंने खुद जाना है उनसे, और मैंने उनके डिस्कशंस के बाद उन्होंने खुद भी बताया था और उनके ग्रुप में से भी लोगों ने मुझे बताया था। तो मैं तो समझता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि मेरा पंचम दा के साथ इतना क्लोज एसोसिएशन था फॉर 10 years। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि पंचम दा के साथ मेरा वो मुझे एक छोटे भाई के तरह उनका एक मेरे साथ तेवर था। मतलब वो मुझे प्यार करते थे, कभी कभी गुस्से में गाली भी देते थे, कभी मजाक भी करते थे। और मुझे वो गाना आता है जो मैं अभी क्लोजिंग में कहता हूँ, वो जो उनका आ गले लग जा का गाना है, तेरा मुझसे ये पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। तो वही है कि तेरा मुझसे ये पहले का नाता कोई, वही मुझे लगता है कि पंचम दा से मेरा कोई बहुत ही गहरा रिश्ता था और आज भी है, आज भी मेरे दिल में है। आप अगर मेरा टी शर्ट देखोगे, उनका जो पंच है वो आपको नजर आएगा मेरे टी शर्ट पर। तो देखिए, पंचम दा मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। हमें शायद गाने सुनने की चाहत कम होती अगर पंचम न होते। थैंक यू वेरी मच। अद्भुत पंचम ग्रुप के सभी दोस्तों का मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का सब्जेक्ट है पंचम, जो कि अपना सबका प्यार का, दिल का वास्ता रखता है। आज तक हिंदी इंडस्ट्री ने बहुत सारे अच्छे संगीतकार देखे हैं, मगर पंचम एक प्रयोगशील या एक्सपेरिमेंटल संगीतकार था। जिस किसी चीज़ से आवाज़ निकल सकती थी उसे वो सुर में लगा के गाने में इतनी खूबी से डालता था कि बस रे बस। पंचम का एक कमाल का बात था कि नॉन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ जो बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि रेसो है, मादल है, फिर अंकलुंग है, ये सब भी उन्होंने इंडिया में लाए। पंचम एक संगीत का जादूगर था। पंचम के इस अद्भुत एक्सपेरिमेंट्स के कारण इन नॉन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को मान्यता मिली और बाकी संगीतकारों ने उन्हें यूज़ किया। सिंपल यूज़ ऑफ बॉटल में पानी भर के, बियर की बॉटल में एक्चुअली, और उन्होंने यूज़ किया है बहुत सारे गानों में, जैसे कि रुक जाना वो जाना वारंट का गाना है, ओ माझी रे खुशबू, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें पंचम ने ये बॉटल यूज़ की है और बजाने वाले थे बासुदा। मगर एक गाना बहुत फेमस हुआ था और लोग दीवाने हो जाते जब उन्हें समझ में आता है
कि ये बॉटल बजी है वो है महबूबा महबूबा। तो महबूबा में जो बॉटल बजी थी फिर से बासुदा ने बजाई थी, मगर ये एक्सपेरिमेंट एक अलग एक्सपेरिमेंट था। जैसे कि तो एक सिंपल बॉटल का यूज़ और कितना इफेक्ट, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ पंचम। ये पंचम के लिए बात अगर करने बैठूं तो बहुत कुछ बात करने जैसा है, मगर फिर भी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी अद्भुत पंचम ग्रुप मेंबर्स को, मेरा सलाम। जय पंचम। धन्यवाद।